the laws of chemical combination. Now, for the laws of chemical combination, you require only two things to be done. Everybody pay attention. For the laws of chemical combination, pehli cheez statements. Second is examples to understand. So, statements I am not doing. From the NCERT, topic 1.5, you will go through the laws, the parts written in italics. The portions written in italics are the laws. I would read it out for you in case you do not have it in front of you, but you would try to understand it. Law number 1 is the law of conservation of mass. ये हमने 9th class में करा हुआ. States that matter can neither be created nor be destroyed. Lavoisier had given the law. Matter can neither be created nor be destroyed. ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन केमिस्ट्री के लिए नॉट एप्लीकेबल. केमिस्ट्री में आर इंटरेस्ट इज केमिकल इक्वेशंस, और केमिकल इक्वेशन में हमारा इंटरेस्ट किसके मास में? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के. सो our interest is total mass of the reactants should be equal to the total mass of the products. If you remember, class 9th में एक प्रैक्टिकल किया था. दो रिएक्टेंट, दो लिक्विड्स मिला दिए थे. पहले दो टेस्ट ट्यूब्स में दो लिक्विड्स थे, बीकर में रख के उनको वे करा था. फिर उसके बाद दोनों लिक्विड्स को आपस में मिला के पूरे एपरेटस को रीवे किया. मिलाने के बाद व्हाइट पीपीटी आया था, याद आया? टुवर्ड्स टेल एंड ऑफ क्लास 9th किया था ये प्रैक्टिकल. Total mass of reactants is equal to total mass of products is the law of conservation of mass. As a practical भी किया है class 9th में. Last practical था most probably. Second last या last second semester में last practical था. शुरू में mass निकाला था 200 something कुछ आ रहा था, 197 किसी का आ रहा था, और फिर उसके बाद दोनों को मिला दिया and final mass दोबारा निकाला था. In case you do not remember, you should remember कि all balancing is related to conservation of mass. So coming to the second law. Law of definite proportion. Statement पढ़ रही हूँ. A given compound, कोई एक compound ले लेते हैं, will always contain the same element. आप कहीं से भी लेके आओ compound, chemical reaction करो, industry से लेके आओ, कहीं से भी वो compound लेके आओ, उसमें the elements in it will always be same and their ratio by mass, I repeat, their ratio by mass would always be same. Example देखिए. Pure chemical compound will always have same elements and same proportion by mass is the key of this particular law. Pure chemical compound will have same elements and same proportion by mass. Example number 1, water. If you obtain water from rain, you obtain water by heating copper sulfate .5H2O को हीट करके भी तो वाटर आ जाता है. कहीं से भी वाटर लेके आओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, तब भी वाटर बन जाता है. सो यू ऑब्टेन वाटर इमटेरियल ऑफ द सोर्स. कहीं से भी लेके आए, वाटर में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे. और जब उनका मास निकाला, मास प्रोपोर्शन क्या होगा? H2O1 2x तो 2 ग्राम्स हो गया, O का 1 है तो उसका एटॉमिक मास 16 हो गया. जो भी U हो, 2U is to 16U, सेम रेशियो होना चाहिए. So it comes out to be 1:8. Now you take water from any source, the mass would be 1:8. का मतलब 90 grams water will always contain 10 grams hydrogen and 80 grams oxygen. कोई दिक्कत? Is that okay? Of course, hydrogen ऐसे होता है और oxygen हमेशा ऐसे लिखा जाता है because they are diatomic in nature. आगे बढ़ो. दैट इज द सेकेंड लॉ. एक और एग्जांपल किया है हमने. एज आई सेड, अ प्योर केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे और उनका प्रोपोर्शन बाय मास भी सेम होगा. ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हमको कैसे मिल सकता है? कैसे लेके आऊं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. एक तरीका ये है. और कोई तरीका याद है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता हो? लाइमस्टोन में HCl डाल दो, तब भी मिल जाएगा. When you are late, very late in fact. एक और तरीका कार्बन डाइऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, या विनेगर एंड बेकिंग सोडा. गवर्नमेंट दैट्स राइट. बर्निंग अ हाइड्रोकार्बन ऑसम. CaCO3 डिकम्पोजिशन. कुशाग्र बढ़िया बेटा. देयर आर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. बर्निंग में तो बेटा फ्यूल्स को बर्न करने से तो CO2 मिलेगा ही. कहीं से भी ले आओ, डजंट मैटर. आप CO2 लेके आ गए तो एंड चेक करा तो उसके अंदर हमेशा कहीं से भी लेके आओ कार्बन और ऑक्सीजन ही मिलेगा.
हमेशा कहीं से भी लेके आओ कार्बन और ऑक्सीजन ही मिलेगा, और उनका रेशियो बाय मास वुड बी 12:32। क्यों? एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन, तो रेशियो वुड बी 12:32, which comes out to be 3:8. That was the second example. Moving ahead to the third law, law of multiple proportion. Now pay attention. ये दो तो बेटा पहले करे हुए, 9th में हुए हैं, सुने हुए हैं. Now coming to the law of multiple proportion, let me read it out to you. Dalton had proposed this law. According to this law, if two elements can combine to form two or more than two compounds, तो पहले दो एलिमेंट लेने, उनके कंपाउंड्स बनाने. I repeat, if two elements can combine to form two या more than two compounds, then for a fixed mass of one of the elements, the mass of the other element is in simple whole number ratio. दो कंपाउंड्स बन गए, दोनों कंपाउंड्स में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फिक्स करो. For a fixed mass of one of the elements, in both the compounds, the mass of the other element का रेशियो लेंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है. अब ये स्टेटमेंट हुआ, ये तो याद ही करना है. एग्जाम्पल लेते हैं पहला. पे अटेंशन. Two elements, I repeat the law. When two elements can combine to form more than compound, carbon and oxygen combine to form two compounds, CO and CO2. हो गए more than two compounds. Then for a fixed weight of one, चलो इसका weight ratio निकालते हैं बेटा. कार्बन का 12:16. कोई दिक्कत? Is it visible? Is it visible? Okay. इसमें बताओ कार्बन का 12:30. I repeat. The question says, the law says, if two elements can combine to form more than one compound, then for a fixed mass of one of the elements, कार्बन को फिक्स कर लेती हूँ मैं. For a fixed mass of one of the elements, the mass of the other element, ये हुआ ना, the mass of the other element should be in simple whole number ratio. यानी simple whole number ratio क्या हो जाएगा? 16 and 32. That makes it 16:32, which will be equal to 1:2. उत्कर्ष क्या कह रहे हो? 3.3:4 and 3:8. ऐसा नहीं है ना बेटा. मैं अच्छा ऐसे ही what he is trying to say, आप इसको further reduce कर दो. 3:4 and 3:8. अब fixed mass is 3, 4:8, that is 1:2. हमारा आंसर तो 1:2 आ गया ना. The ratio of oxygen for a fixed mass of carbon is 1:2. I repeat the law again. If two elements can combine to form more than one compound, then for a fixed mass of one of the elements, the mass of the other element is in simple whole number ratio. तो mass of the other element कौन हुआ? Oxygen. उसका रेशियो क्या हुआ? 16:32. So it comes out to be 1:2 is oxygen for a fixed mass of carbon. एक और एग्जाम्पल करें? एक और एग्जाम्पल कर लें क्या? एक और कर लेते हैं. Pay attention. Example number 2. Two elements, nitrogen and oxygen, combine to form awesome number of compounds. Nitrogen dioxide, nitrogen monoxide, nitrogen pentaoxide, nitrogen trioxide. Two elements combine to form more than one compound, NO2, NO, N2O5 and N2O3. रेशियो निकालते हैं. For each of them रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं. चलिए शुरू करें. मैं पेन से लिखती हूँ बेटा, जगह थोड़ी कम लगेगी. एक बार देख के बताओ तुमको दिख रहा है? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14. ऑक्सीजन 2 है तो कितना हो जाएगा? 32. इज दिस विजिबल? 14:32. इज इट विजिबल? यहाँ पे चलते हैं. 14 एक ही ऑक्सीजन है 16. यहाँ पे चलते हैं. N2 28 ऑक्सीजन 5 है. 16 5 सा 80. 28:80 भी आ गया. लास्ट नाइट्रोजन 2 है. 28:16 3 सा 48. ओके, ये हो गया अभी तक का रेशियो. नाउ आई विल टेक नाइट्रोजन टू बी कांस्टेंट. मैं सब में नाइट्रोजन कांस्टेंट ले रही हूँ और वो मैं 14 ले रही हूँ. ठीक है, तो एक हुआ 32,
14 ये हुआ 16. Can I rewrite it as 14 is to 40? Can I rewrite it as 14 is to कितना आएगा 24? हाँ या नहीं? रिड्यूस कर लिया ना. फॉर द सेम मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को 14 कॉमन लिया, 14 14 14 14. व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन? 32 is to 16 is to 40 is to 24. इसको मिनिमाइज कर लो, इसको मिनिमाइज करो, डिवाइड बाय 8 कर दो तो आ जाएगा, डिवाइड बाय 8 कर दो तो मिनिमम रेशियो आ जाएगा. I repeat, nitrogen and oxygen combine to form many compounds. Then, for a fixed mass of nitrogen in all of them, मैंने नाइट्रोजन को 14 लिया है सबने, रिड्यूस कर दिया. रेशियो ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 32, 16, 40, 24 divided by 8. What do you get? 4 is to 2 is to 5 is to 3. 4 is to 2 is to 5 is to 3. 4 is to 2 is to 5 is to 3. तो ऑक्सीजन का रेशियो इनमें बनता है 4 is to 2 is to 5 is to 3 is your answer for a fixed mass of nitrogen. आप fixed mass of oxygen भी ले सकते हैं बेटा, आपकी मर्जी है, मैंने सिर्फ नाइट्रोजन से समझाया. Can we move ahead? Ma'am, what is the difference between NO and N2O2? N2O2 is the dimer of NO. NO का मॉलिक्यूल बेटा अकेला नहीं रहता है. कौन पूछ रहा था ये? Who was it? अंश मेश्राम साहब. ओके. NO में बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है. कराऊं क्या? मुझे ना भटका देना, टॉपिक ना खत्म करने देना अंश. ठीक है, रुको स्लिप ऑफ पेपर निकालूं ताकि हम इसको कर पाए. फिर उसके बाद गेलो-सैक्स लॉ पे जाते हैं. पंच ने पूछ ही लिया है तो करना तो पड़ेगा. चलिए, NO को N2O2 क्यों लिखते हैं? फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड. N and O. ओके. नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन को सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाने हैं तो उसके 4 बचे. नाइट्रोजन ने अगर 2 बॉन्ड बनाए तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे. ऑक्सीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटिस्फाइड है, उसके तो 8 पूरे हो चुके. नाइट्रोजन को बहुत प्रॉब्लम है, उसका 7 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ. कोई दिक्कत? अंश साहब, NO को, अंश ने पूछा NO को N2O2 क्यों लिखते हैं, उसका जवाब दे रहे हैं. NO के स्ट्रक्चर में ये हाल है, इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिखते हैं NO और एक डॉट लिख देते हैं क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पूरे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं. अब ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स जब आप इसको कूल कर देते हैं ना तो ये मॉलिक्यूल आपस में पास आ जाते हैं. एक इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पे लोन पेयर, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पे लोन पेयर. इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए. तो ये क्या करते हैं, आपस में ये नया बॉन्ड बना लेते हैं और दोनों साथ रहते हैं. तो गिवन अ चॉइस, NO stays as N2O2, it dimerizes. Now I'm moving ahead, Ansh. I cannot afford more time on this. All right. Gay-Lussac's law of gaseous volumes. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये गैसेस के लिए है और लॉज वॉल्यूम का है. वॉल्यूम का रिलेशनशिप होगा विच इज एप्लीकेबल टू गैस. उसके सिवा अगर गैस है बेटा तो यू नीड टू स्पेसिफाई द टेम्परेचर एंड प्रेशर. द रीजन इज टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज होने से भी वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंज हो जाता है. क्योंकि वी हैव टू टॉक अबाउट द वॉल्यूम्स ऑफ द गैस, वी नीड टू स्पेसिफाई द टेम्परेचर एंड द प्रेशर. Let's read the law given in your book first. I'll give you the statement for it. The statement says, just give me a minute. All right, the law says, the statement of the law is, when gases combine or are produced, मतलब gases को combine होना है या produce होना है, मतलब chemical equation चाहिए ना बेटा, combine होंगे तब भी और produce होंगी तब भी. When gases are combined or are produced, they do so in simple ratio by volume only if the gases are at same temperature and pressure. The law is applicable only if the gases are at same temperature and pressure, number one, and it should be a chemical equation also on top of it, plus their ratio of volumes
comes out to be simple whole number ratio. इस बात का क्या मतलब, क्यों होगा बेटा? एक बात बताओ, केमिकल इक्वेशन में जो आगे नंबर होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये तो हमको पता है। जो आगे इक्वेशन होता है वो तो नंबर ऑफ मोल्स होता है। अब अगर मैं रेशियो ऑफ एक केमिकल इक्वेशन लेती हूँ, ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड वाटर का भी गैस है बेटा, वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर है, ठीक है। गैसेस के लिए एप्लीकेबल है लॉ, तो इसलिए मैंने गैसेस ले लिया। नाउ कैन यू टेल मी द रेशियो ऑफ मोल्स? 2 मोल्स इज टू 1 मोल इज टू 2 मोल्स, कोई दिक्कत? 2 मोल्स इज 1 मोल इज टू 2 मोल, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आ गया? These numbers refer to the number of moles. So 2 combined with 1 mole combined with 2 mole to give you 2 moles. ठीक है, आगे बढ़ूं। अब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तुमको ये पता है कि 1 मोल ऑफ द गैस विल ऑक्यूपाई हाउ मच वॉल्यूम? बढ़िया। तो मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड है बेटा। तो मोल्स का रेशियो क्या है? 2:1:2। तो वॉल्यूम्स का रेशियो भी 2:1:2 आएगा, was the law. I repeat the law again. When gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. Because they do so in simple whole number ratios of moles. Moles are directly related to volumes. If the temperature and the pressure is constant, the volume of 1 mole of a gas is fixed. So volume ratio will be same as the mole ratio. Yani, have a look. Agreed? At STP, this is equal to 2 times 22.4, this is 22.4, this is 2 times 22.4, which means ये डबल वॉल्यूम, ये सिंगल वॉल्यूम, ये डबल वॉल्यूम। Therefore, भी अगर ये 100 ml है तो ये कितना होगा? 50 ml। तो ये कितना बनेगा? अगर ये 100 ml है, कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है ना बेटा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमको मालूम है, अगर कोई टेम्परेचर प्रेशर फिक्स्ड है तो वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, और जो भी इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम विल बी हाफ, क्योंकि इसके मोल कॉम्बिनेशन इज हाफ। So the answer here would be 100 ml. Done? आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल करा दिया, प्लीज रीड इट योरसेल्फ। So moles are related to volume of the gas at STP, standard at a constant temperature and pressure. Since we know that the moles are related to the volume of the gas, molar ratio अगर simple whole number है तो volume ratio भी simple whole number ratio हो जाएगा। कोई दिक्कत? Can we come to the last law? Can I move on to the last law? Okay. अब बताओ, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं एवोगाड्रोस के बारे में बात कर रही हूँ। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एवोगाड्रोस नंबर? Na is the way we represent it. 6.022 10 to the power 23 is the Avogadro's number. All right. 1 mole of a component has Avogadro's number of identity. ये हमें आता है। अब मुझे इसको गैस से रिलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ द गैस, अच्छा चलो, 1 मोल ऑफ द गैस ऑक्यूपाइज 22.4 liters, ये ठीक है? तो ये ठीक है क्या? 22.4 liters at STP will always have Avogadro's number of gas molecules. 1 मोल के अंदर, लॉ पढ़ू पहले? चलो लॉ बाद में पढ़ेंगे इस बार। मेरे पास 3 चीजें हैं, 3 बर्तन है। एक में हीलियम गैस है, एक में आर्गन गैस है, और एक में नियॉन गैस, नाइट्रोजन गैस। ये हीलियम, ये आर्गन और ये नाइट्रोजन। मैंने वेसल का साइज सेम रखा है, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया है, एंड द वॉल्यूम इज सेम। सबका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मैंने सेम लिया,
सारे के सारे का वॉल्यूम 22.4 लीटर के वेसल है सारे के सारे। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में इसके अंदर साइज इसका 22.4 लीटर्स हो, तो तुमको ये पता है इसके अंदर हीलियम एटम्स कितने होंगे? आई रिपीट, आई हैव अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। इसके अंदर हीलियम एटम्स कितने होंगे? 1 मोल, बिकॉज गैसेस के लिए एट एसटीपी द वॉल्यूम इज 22.4 लीटर विल कंटेन 1 मोल ऑफ हीलियम। आर्गन कितने होंगे? सेम वॉल्यूम है बेटा, सारे डब्बे सेम साइज के हैं, 22.4 लीटर का ये वाला वेसल भी है, तो इसके अंदर आर्गन कितने होंगे? 6.022 10 to the power 23 आर्गन होंगे। और इसके अंदर नाइट्रोजन कितने होंगे? 6.022 10 to the power 23 N2, 6.022 10 to the power 23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2। इज दैट ओके? मतलब कहने का ये, फॉर एट स्टैंडर्ड एट अ पर्टिकुलर, स्टैंडर्ड तो हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको ये पता था, अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर ले लूं और गैसेस का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। आई रिपीट, फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स विल बी सेम। इसमें से एवोगाड्रोस लॉ क्या निकला? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, that is 1 bar, and what is the temperature? 273 K, that is 0 degree C. At standard temperature and pressure, 22.4 liters is the volume occupied, then the number of identities in that unit would be Avogadro's number. I now state the law from here. Pay attention, have a look at this. ये 22.4, ये भी 22.4, ये भी 22.4, तो इसके अंदर 6.022 10 to the power 23 helium atoms. This would have 6.022 10 to the power 23 argon atoms. This would have the same number of nitrogen molecules. Equal volumes of gases, तीनों की वॉल्यूम मैंने इक्वल लिया है, equal volumes of gases at same temperature and pressure, temperature pressure same रखा, equal volume of gases will have same number of molecules or atoms, is the Avogadro's law. हमने इसको कैसे रिलेट कर दिया था? If the volume is 22.4 liters at standard temperature and pressure, then the number of molecules is 6.022 10 to the power 23 constant. उसको किसी भी कंडीशन पे अगर हम बोले 1 लीटर अगर है, सपोज ये तीनों 1 लीटर के वेसल्स, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर यू हैव टेकन टू बी कांस्टेंट, 1 लीटर ऑफ these 3 gases at a particular temperature and pressure will have same number of constituents. Now this will not be 6.022 10 to the power 23. ये तो सिर्फ तब होता है जब टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड हो और वॉल्यूम 22.4. I now will read out the law to you. Equal volumes of gases at same temperature and pressure will have equal number of molecules. Equal volumes of gases at same temperature and pressure will have same number of molecules या atom. With this we close the topic of chemical combination of